مالک دوڑی زندگی دراز کر بھائی کو بنیا ایک شعر قصیدے دا ہک وین داغ ماتم جو سینے پہ سجا رکھا ہے دل کو مولا کا زوار بنا رکھا ہے مشکلوں سوچ کے آنا میرے گھر کی جانب میں نے غازی کا علم لگا رکھا ہے ایک شعر جناب اگر اجازت ہو بابا سے بلند تر صلوات تشریح کا ٹائم نہیں زیادہ جناب ابو طالب کو لوگ آئے آخیا کہ اے ابو طالب تو سردار تسیم سردار فخر کس بات دا جب جناب ابو طالب نے گل کی کہ تسی عرب دے سارے کمی سردار صرف ابو طالب ہے انہاں کہ مالک نے تنوں کیڑا مرتبہ دیتا ہے کیڑا مقام دیتا ہے جیڑی گل جناب ابو طالب نے انہاں لوگوں نے کیتی ہے ایک شعر قصیدے دا ایک نعرہ مارو میر دے نام دا پوچھتا ہے کہ عمران کیا ہے علی اور محمد میرے تو پھر پوچھتا ہے کہ عمران کیا جناب ابو طالب والے میرے کو علی اور محمد نے پھر تسی پوچھ دیو کہ تیرا مقام کیا ہے اس دی بڑا مقام تو انہوں اپنا کیا اڑے سا اگلی گل تک غور کرنی ہے ثانی تک غور کرنی ہے کہ مراد کیا ہے وعدہ خدا کا میں نے نبھایا تو پھر پوچھتا ہے کہ عمران کیا ہے علی اور محمد کل قرآن نارائے جناب عمران نے جڑی گل کی تھی کہ میری گو دی پرورش دیکھو جنہوں نے میں پالے ہیں انہوں نے کیا مقام ہے ہاں بھائی میری پرورش دیکھ لو تم خدا کے ولی سر جھکا ہے کھڑے بسم اللہ کرا دعاڑیاں بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا میری پرورش سر دیکھ لو تو خدا کے ولی سر جھکائے کھڑے ہیں نبوت امام میرے زانوں پر خدا کو یہ مذہب میں نے دیے دنیا کے راز میں ان کو کھلاتا تو پھر پوچھتا ہے کہ عمران کیا ہے علی اور محمد نعرہ حیدری علم سرکار دائے علم سرکار علم سرکار آئے علم سرکار دا علم کار دا ہے علم سرکار دا علم سرکار دا علم سرکار دا
ہے علم سرکار دا علم سرکار دا ہے علم سرکار دا علم سرکار دا ہے علم سرکار دا پل وچ بگڑی بڑا علم سرکار دا ہے علم سرکار دا پردہ بیاں کمل بنے نند بچڑے کیتے تے 9 لاکھ بنماش بلائے گئے دے لالچ سر جاگیراں دے خط لکھ لکھ کے بلائے گئے دے لالچ سر جاگیراں دے خط لکھ لکھ کے بلائے گر قتال عباس کو کربل وچ ود عید تجھ شان منائے گئے شبیر دے گھر تائیں پہنچن لئی عباس دے ہاتھ کٹائے گئے ایک وین اور کرنا قبلہ جناب 12 محرم نجے والے بیبیاں گزریاں میری سین جناب باز دی لاج تے کولوں گزری ہے دیے غازیو بھین شام پئی ویندی ہے جناب باز دی لاج تڑپی ہے آواز آندا میں کو معاف جا کر لجپال دیدی تے تیرے مان با نہیں سکیا تیری ماں دیاں پا کہ دوا دا احسان لہانے اگر ڈگر کو وہ کو لوٹ پا گئے تیری مدد کو نہیں سنگیا میں کو حیرمان تیری چادر لے گئی میں نے فضل بچانے دوا بین براما دی پابندی چ ماریا گیا اگر اجازت ملو بے بلانے اٹھن سوار نہ ہاتھ وچ کڑیاں پاندی اللہم صلی اللہ محمد اللہم صلی اللہ محمد درخواست کروں گا اگر ذہن نو پلیز آگے آگے تشریف لیں جو جگہ خالی پور کر لیں جو حضرات پیچھے کھڑے ہیں مومن وہ آگے تشریف لیں اگر آ سکتے ہیں تو ہو جائے تھوڑا آگے اور ہو جائے ٹائم کافی ہو چکا ہے اور میں صرف مجھے سعید بھائی جان نے کہا ہے کہ روشن عباس صاحب کو پڑھنے کے لیے تو صرف 5 منٹ جڑی وہ اپنا ٹائم دے کے اپنی حاضری یہ پیش کریں آواز بلند تر صلوات بند ہو گئے دیکھنا بابا جی بلند صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد یزیدیت مردہ باد اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات
باوز بن سلمان تجھے دیکھنا ہے وضو میرا تجھے دیکھنا ہے وضو میرا تیرا عشق میری نماز ہے تیرا عشق میری نماز ہے تو ہی بخش دے تاج شاہیاں تو ہی بخش دے تاہ شاہیاں تو بڑا غریب نواز ہے تجھے دے تو نبی کی پشت پہ ہو گئے بڑی توجہ کے ساتھ سنیے ایک ایک چیز بڑے دل کی تو نبی کی پشت پہ ہو گئے تو نماز حق بھی رکی رہے تو نبی کی پشت پہ ہو گئے تو نماز حق بھی رکے رہے تو حسین تو حسین ہے تو حسین ہے تو نماز کی بھی نماز ہے تو نبی کے کاندھے پہ ہو گئے وقت کی شارٹیج ہے میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہ رہا تو نبی کے کاندھے پہ ہو گئے تو خدا خدا سا دکھائی دے تو نبی کے کاندھے پہ ہو گئے تو خدا خدا سا دکھائی دے تیرے ہاتھ میں
ہے یہ دو جہاں تیرے ہاتھ میں ہے یہ دو جہاں کہ نبی کی زلفیں دراز ہیں تو نبی کی پشت پہ ہو گئے تو نماز حق بھی رکے رہے تو حسین تو حسین ہے تو نماز کی بھی نماز ہے بآواز بلند تر صلوات اور محمد آل محمد بلند تر صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین اللہم ایک نعبد و ایک نستعین الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين ثم الصلاة والسلام على مخدومة نوع الإنسان معصومة كل الزمان بلقيس هجرة تقديس الجلال وآسية عالم التكميل والكمال بنت القلم والنون والسر بين الكاف والنون دلیل ارادت کن فیکون وکتاب المکنون آیت اللہ العظمی زوجت آیت اللہ الکبری محافظت النبوہ و ناشرت الولایہ شمعت مجلس الرسول و کوكب سبیل القبول ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام الائمہ ام المعصومین ام العلوم ام الہدی ام الحسن ام الحسین ام المحسن و ام ابیہا الصدیقۃ المبارکہ الراضیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ السیدہ ولعن اللہ تعالی آبائهم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور الذین کفروا اولیاءهم
तागूत युखरिजूनहुम मिन नूर इला ज़ुलमात उलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। सलवात। दुआ है कि मालिक इज़्ज़त बारगाह इज़्ज़त में आए हुए हर साहिब इज़्ज़त की इज़्ज़त को महफूज फरमाए। मालिकान ज़िक्र, बंदगान ज़िक्र का, वारिसान ज़िक्र की बारगाह में पेश होना कबूल व मंजूर फरमाए। आप जितनी भी हाजात, जितनी दुआएं अपने दिलों में लेके, अपने जहनों में सोच के बैठे हैं, इस मुक़द्दस बारगाह से कोई भी खाली हाथ वापस न जाए। मौला तमाम मोमिनीन की तौफीकात में अज़ाफ़ा फरमाए। जो जो परेशानी है मेरा मालिक, बीमारी की सूरत में है, कर्ज़ की सूरत में है, बे औलादी की सूरत में है, मेरा मालिक हर मोमिन की परेशानी को दूर फरमाए। आपके जितने मरहूमीन हैं, शोहदाए मिल्लत जाफरिया हैं, और सैयद इशफाक हुसैन नकवी, सैयद आफ्ताब हुसैन नकवी, सैयद मंसूर हुसैन जैदी, फजल हुसैन शाह, जाफर अब्बास जैदी, इसके अलावा जो जो मरहूमीन हैं, मेरा मालिक तमाम के दर्जात में बुलंदी फरमा। मेरा मालिक हमें उस वक्त तक मौत न देना जब तक वक्त के इमाम हम पे राज़ी न हो सके। जो बीमार है जाफ़र नज़ीर नामी एक मोमिन है, कोविड की वजह से शदीद अलील हैं, मेरा मालिक आज के ज़िक्र की इज़्ज़त के सदक़े से उन्हें मुकम्मल सेहत अता फरमाए। इन तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए सलवात सारे हज़रात मिल के बाबा से इजाज़त है, ज़िक्र शुरू किया जाए। मंजिल थोड़ी दूर है और वक्त बहुत मुख्तसर है, और मुकम्मल कोशिश और काविश है कि आज की और कल की मजलिस में हम अपने मौजू को मुकम्मल कर सकें। गुफ्तगू हो रही है खुदावंद मुतआल के इस हुक्म के तहत कि खुदा वो वली है जो अंधेरों से निकालता है, नूर की तरफ लेके आता है, और शैतान उनका वली है और वो अपनी तागूत की ताकत के साथ नूर में आए हुओं को दोबारा अंधेरों में लेके जाता है। मैंने आपके सामने इस्लाम की मुकम्मल हिस्ट्री पढ़ी कि मक्का से रसूल ने अंधेरों से निकाला, नूर में रखा। मदीना में रसूल ने अंधेरों से निकाला, नूर में रखा। गदीर में रसूल ने नूर दिखा दिया। मीनारा नूर उम्मत के सामने बुलंद कर दिया। कल की गुफ्तगू इस नहज में पहुंची थी कि तीसरी खिलाफत का दौर ख़त्म हो चुका। अब पहला खलीफा अजमाई उम्मत के साथ, दूसरी खिलाफत वसीयत के साथ, तीसरी खिलाफत शूरा 6 रुकनी कमेटी के साथ। अब जब तीसरी खिलाफत का दौर ख़त्म हुआ तो अब मुसलमान खिलाफत की जख्मी ऊंटनी को लेके अली के दरवाजे पे आए। ये लफ्ज़ मेरे नहीं है, ये लफ्ज़ नहजुल बलागा में मेरे मौला ने कहे, मैंने आप तक पहुंचाए। मौला ने कहा नाकाए खिलाफत, जब आके अली के दरवाजे पे कहा या अली हम चाहते हैं कि हम आपकी बैयत करें और आप ज़माम इस्लाम को संभालें और आप मिंबर रसूल पे बतौर खलीफतुल मुस्लिमीन आए, तो ये जवाब आज भी तारीख के माथे पे झूमर बन के चमक रहा है जो मेरे बादशाह अली ने दिया। अली ने फरमाया उठाओ अपनी जख्मी ऊंटनी को, तुम्हारी हुकूमत मेरे नजदीक बकरी के नाक से बहते हुए पानी से भी कम था। उठाओ इस जख्मी ऊंटनी को। ये जुमले बिल्कुल बेआईने ही मैंने वो पढ़े जो अमीर अल मोमिनीन ने कहा, उठाओ अपनी जख्मी ऊंटनी को। तुम क्या समझते हो कि तुमने अली को खिलाफत के लिए चुना? क्यों लेके आओ इस नाकाए खिलाफत को मेरे दरवाजे पे जब मैं इस पे सवार ही नहीं होना चाहता? अली ने फरमाया मैं तुम्हारी खिलाफत को कबूल नहीं करता। अब जिसे कल की तकरीर याद है, मैं वहीं से रब्त कायम करने लगा हूं। कल वाली तकरीर में मैंने कहा था कि अमीर अल मोमिनीन के सामने 3 शर्तें रखी गई थी, कुरान पे अमल, सुन्नत पे अमल, सीरत शेखैन पे अमल। 12 साल के बाद दोबारा मुसलमान अली के दरवाजे पे आए। 12 साल पहले शर्तें लेके आए थे, कितना फर्क आ गया देखिए। 12 साल पहले यही लोग शर्तें लेके आए थे, आज कोई शर्त नहीं। आज अली से कहते जो तू चाहता है। बहुत अहम मोड़ पड़ने लगा हूं।
میں پہلے کہا تھا کہ خطابت کی دنیا کے لیے خطیب کا اپنے آپ کو موت دینے کے مترادف ہے ایسے خشک موضوعات کو منبر پہ چھیڑنا جس میں آپ کو مجمع سے داد و تحسین بھی نہیں مل سکتی اور بعد میں سن کے بھی پذیرائی نہیں مل سکتی اور الزامات آپ نے علیحدہ اپنے اوپر لینے ہیں کہ اختلافی موضوعات کو کیوں چھیڑا گیا. لیکن میری مجبوری ہے, میرے پیشے کا نام علی نہیں, میرے عشق کا نام علی ہے. میری مجبوری ہے کہ جہاں دشمن میری قوم کے بچوں پہ مختلف یوٹیوب چینلز بنا کے تابڑ توڑ حملے کر رہا ہے میرے مذہب پہ اور ٹائٹل دے رہا ہے شیعوں سے یہ پوچھو, شیعوں سے یہ پوچھو. میرے بزرگ اس بات کی گواہی دیں گے 30 یا 40 سال پہلے شیعوں سے کوئی بھی نہیں پوچھتا تھا. شیعہ مذہب کے بچوں سے بھی سوال ڈرتے ہوئے نہیں کیا جاتا تھا کہ شیعہ قوم کا بچہ بچہ مبلغ ہے, بچہ بچہ مناظر ہے. جو بچوں سے نہیں پوچھتے تھے آج وہ بزرگوں کے گریبان پہ ہاتھ ڈال کے کھڑے. صرف کس وجہ سے؟ ہم نے خود اپنے آپ کو دیوار کے ساتھ لگایا ہے. قتل اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں قوم کو اس بات پہ آمادہ کر رہا ہوں کہ آپ جنگ کریں, آپ لڑیں, لیکن آپ کے پاس اتنا مواد ہونا چاہیے. کوئی آپ پہ سوال کرے آپ فوراً آگے سے جواب شروع کریں. ہم پہ اعتراض کرتے ہو کہ صحابہ کی عزت نہیں کرتے, ہم بتائیں کہ کون کس کی کتنی عزت کرتا تھا. آپ ہمیں بتائیں کہ عبداللہ ابن مسعود کی پسلیاں کس نے توڑی تھی. آپ ہمیں بتائیں کہ ہمارے یاسر کو قتل کس نے کیا تھا. آپ ہمیں بتائیں کہ ابو ذر غفاری کو مدینے سے کس نے نکالا تھا. آپ مجھے بتائیں کہ صحابی رسول مالک بن نویرہ کو قتل کس نے کیا تھا. اس کو قتل کرنے کے بعد اس کی کھوپڑی کو اس کے اوپر آگ جلا کے ہنڈیا کس نے بنائی تھی. محمد بن نبی بکر کو زندہ گدھے میں گھال میں رکھے کس نے جلایا تھا. نبی کی بیوی کو زندہ گڑھے میں کس نے پھینکا تھا. ہم غریب ہیں لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ قاتل بھی رضی اللہ, مقتول بھی رضی اللہ. آج جہاں سے کچھ نہیں ملتا, یہ لوگوں کے پاس ایک سفید عالم ہے بس لوگوں کے جذبات کو ابھارنے کے لیے. شیعہ صحابہ کی عزت نہیں کرتے شیعہ صحابہ, لہٰذا ہم شیعوں کے مخالف ہیں. قانون پاس کرو, سنجیدہ ہونا چاہتے تو قرآن کے حاشیے پہ لکھ کے دو کہ جو صحابی کو گالی دے گا تو مجھ سے کافر لکھتے ہو تو قرآن کے حاشیے پہ لکھ کے دو. تم قرآن کے حاشیے پہ لکھو گے میں تمہاری کتابوں سے اس بندے کا نام نکالوں گا جو منبر پہ علی کو گالیاں دیتا رہا. لیکن مسلمانوں کے بچوں کے ساتھ گھناؤنا کھیل نہ کھیلو. آج بھی اسلام کو ٹھیک ٹریک پہ لے کے آؤ. آج بھی اسلام کی عمارت کو سیدھا کرنا چاہتے ہو تو ان چیزوں کی نشاندہی کرو جسے تم چھپ کے مانتے ہو کہ یہ غلط ہوا ہے. فرق ہے, مولا کی قسم فرق ہے. کمروں میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ہم یہ مانتے ہیں یہ خطا اجتہادی تھی, لیکن ہم یہ اعلان ممبروں پہ نہیں کر سکتے. مولا امیر المومنین کے دروازے پہ آ کر یا علی خلافت کو قبول کیجئے گا. میں متصل ہونے لگا ہوں, مسلسل ہونے لگا ہوں کل کی گفتگو سے. 12 سال پہلے انہوں نے کہا تھا 3 شرطیں ہیں. امیر المومنین نے فرمایا پھر سنو, اگر خلافت لے کے آئے ہو, 12 سال پہلے تو میرے دروازے پہ آئے تھے, میں نے جس شرط کا انکار کیا تھا نا اس شرط پہ آج بھی کھڑا ہوں. میں قرآن اور سنت نافذ کروں گا. میں بہت اہم نقطہ اٹھانے لگا ہوں. امیر المومنین نے فرمایا کہ میں قرآن اور سنت نافذ کروں گا, کسی فرد کی سیرت میں اسلام میں نہیں آنے دوں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے یا علی. علی نے فرمایا اب کیونکہ تم نے مجھے خلیفہ چننا ہے, اب میری بیعت ہونی ہے. میں بیعت اسی شرط پہ لوں گا کہ جس نے میری بیعت کرنی ہے وہ صرف قرآن اور سنت پہ عمل کرے گا, صرف قرآن اور سنت پہ. اس کے علاوہ میری بیعت نہیں ہوگی. بیعت کا جا کے اسلام میں تصور دیکھنا, بیعت ووٹ دینے کو نہیں کہتے. بیعت کہتے ہیں کہ اگر آپ معصوم کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے ہیں تو اب آپ کے اعمال کی ذمہ داری اس معصوم کی ہے. بیعت کرنا ہوتا ہے کچھ بیچنا, کچھ خریدنا. آپ نے اپنا آپ بیچ دیا اس معصوم کے ہاتھ پہ, اور وہ جس شرط پہ خریدے اسی شرط پہ بیچنا پڑتا ہے. علی نے 12 سال بعد کتنا بڑا جواب دیا. علی نے فرمایا جس نے میری بیعت کرنی ہے وہ صرف قرآن اور سنت پہ کرے گا اور کسی کی سیرت پہ نہیں کرے گا. امت مسلمان نے کہا یا علی مجھے منظور ہے. علی نے یہ جواب دے کے دنیا کو کہہ دیا اب علی اور محمد کے درمیان کوئی
फासला नहीं रहा। अब जिसने भी अली की बैयत की वो खलीफा तो बिला फसल कह के की। दरमियान वाले गैप को अली ने निकाल दिया। कुरान सुन्नत अली, ये है अली की खामोशी, ये है अली का इंतकाम। इतनी देर समझा कि अली को कमजोर किया है अमीरुल मोमिनीन ने तलवार उठाए बगैर कहा फिर सिर्फ बैयत होगी मेरी तो कुरान और सुन्नत पे होगी। या अली हम बैयत करने के लिए तैयार है। अली ने फरमाया मैं घर में आके छुप के बैयत नहीं करूंगा। जाओ मस्जिद में इकट्ठे हो जाओ, ऐलान करवाओ, आम ऐलान। अमीर अल मोमिनीन अगर हुकूमत चाहते होते तो अली फरमाते जितने लोग मेरे घर में हैं जल्दी इनसे तो बैत लूं। अली ने फरमाया नहीं, किसी दरख्त के नीचे नहीं। कहां बैठे हैं जो पहले दिन से बैठ से सुन रहे हैं? किसी वीराने में जाके नहीं, किसी के घर के कमरे में नहीं, खुल्लम खुल्ला ऐलान करो मस्जिद नबवी में और इंतजार करो मैं आऊंगा। मस्जिद खचा खच भर गई और उस दिन किताबें कहती हैं कि मस्जिद नबवी तो भरी थी, मदीना की गलियों में तिल धरने की जगह नहीं थी। पूरी जिम्मेदारी है तारीख की मेरे कांधों पे, आपकी जिम्मेदारी है सिर्फ दाद देनी और वसूल करने की। रसूल के बाद खदीर के बाद पहली बैयत है जो अलानिया हो रही है। पहली बैयत चैलेंज है मेरा उम्मत मुसलमान को, इससे पहले कोई खलीफा की बैयत ऐसे अलानिया दिखाओ जिसे यूं ऐलानिया बैत करवाई। अल्लाह ने फरमाया चलो मस्जिद में इकट्ठे हो जाओ, मेरे दुश्मन को भी बुलाओ, मेरे मुहिब को भी बुलाओ, सब इकट्ठे हो। अली मस्जिद में बैत करवाएगा। मस्जिद खचाखच भर गई, मदीने की गलियों में तिल धरने की जगह नहीं थी। इंतजार हो रहा था, अली के घर के दरवाजे की तरफ आंखें थी। अली ने मस्जिद के बाहर से नहीं आना था, अब यहां अब सारा मजमा बैठा होता है, आप इंतजार में होते हैं कि कब आए और कब महीने शुरू हो। अगर आप मेरे इंतजार में बैठे हैं, अगर तो मैंने आना हो उधर से तो आप बार बार पीछे मुड़ के देखेंगे, मैं आऊंगा इधर से। अली ने इधर से आना था, अली के घर का दरवाजा मस्जिद में खुलता था, बिल्कुल मेहराब इबादत के साथ अली का दरवाजा। और आसान करूं, 30% बंदे वसूल करेंगे अगर आसान करूंगा। जहां अल्लाह का मेहराब था ना, बिल्कुल साथ अली का दर था। जिंदाबाद कौम शिया, जिंदाबाद अली वलीउल्लाह पढ़ने वाले, अल्लाह के घर के, अल्लाह के मेहराब के साथ। दिल खुश कर दिया है, मैं दिल से दुआ दे रहा हूं, दिल खुश कर दिया है। इतना बेहतर जुमला वसूल किया है, इससे अच्छा जुमला कह देता हूं, इधर मेहराबुल्लाह था, इधर बाबुल्लाह था। इधर मेहराबुल्लाह था, इधर सिर्फ मेहराब में आते थे, बाब बंद था। अब जागते रहना, मैं नतीजों पे आने लगा हूं। इतनी देर उम्मत पे सिर्फ अल्लाह का मेहराब खुला था, अल्लाह का दरवाजा बंद था। आज नजरें थी दरवाज़े, आज नजरें थी बाबुल्लाह पे, आज नजरें थी अली के दरवाजे पे, आज नजरें थी अली के दरवाजे पे, आज नजरें थी अल्लाह के दरवाजे पे।
इतना देखना था, ये लोगों की नजरें थी, लोग अपने पंजों पे खड़े होके अली के घर के दरवाजे की तरफ देख रहे थे। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला, अमीर अल मोमिनीन की शान से अपने घर से आए, सर से इब्राहिम वाला अमामा, कांधे पे अबू तालिब वाली चादर, हाथ में अंगुष्ठरी सुलेमान, एक हाथ में मूसा का असा, पांव में नालैन मोहम्मद को पहने हुए, चेहरे पे हाशिम की मुस्कुराहट, चेहरे पे अब्दुल मुत्तलिब का तकवा। अमीर अल मोमिनीन चलते आ रहे थे और लोग देख देख के कह रहे थे, ऐसा होता है मोहम्मद का वारिस, ऐसा होता है नबी का वारिस, ऐसा होता है रसूल का जानशीन, ऐसा होता है रसूल का खलीफा, ऐसा होता है रसूल का वसी। अली चलते आ रहे थे, अली मिंबर के करीब आए, पहला खलीफा आखिरी जीने में बैठा था, दूसरा खलीफा दूसरे जीने में बैठा था, तीसरा खलीफा तीसरे जीने में बैठा था। अली ने मिंबर के करीब आके पहले जीने पे पहला पांव रखा, दूसरे जीने पे दूसरा पांव रखा, तीसरे जीने पे तीसरा पांव रखा। अली जहां मोहम्मद बैठा करते थे वहां दोनों पांव रख के खड़ा हुआ, पीछे से बुढ़ा उठ के खड़ा हो गया। उसने कहा, ए अली, तूने मोहम्मद की जगह का ख्याल नहीं किया, जहां नबी बैठते थे वहां तूने पांव रख दिए। अली की चाक में, ये तो लकड़ी का मिंबर है, न मोहरों का साथ। सुनाओ अहले मदीना, वाह 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 वाह। मिंबर पे भी अली, मस्जिद में भी अली है, तो मिंबर पे भी अली, गवाह दोष है पैगंबर पे भी अली, की शब रसूल के बिस्तर पे भी अली, अली की मिल्क है कौसर पे भी अली, हर जो अली मिलेंगे ना दामन बजाइए, बचना अली से है तो जहन्नम। अली ने फरमाया, ऐ अहले मदीना, तुम जो मेरी बैयत के लिए आए हो, बताओ बजोरे शमशीर आए हो या दिल से आए हो? मस्जिद से एक ही आवाज आई, ऐ अली, हम आपको नबी का खलीफा मानते हैं और आप ही के हाथ में बैयत करना चाहते हैं। अमीर अल मोमिनीन ने खुतबा दिया। वो खुतबे का वक्त नहीं है क्योंकि बात आगे बढ़ानी और बहुत कम 2 दिनों में मौजू को मुकम्मल करना। अमीर अल मोमिनीन ने कहा, क्या तुम बैयत चाहते हो? हाँ या अली, हम बैयत चाहते हैं। अली ने फरमाया, फिर करो बैयत। सुभान अल्लाह। अब धीमे लहजे में ऊंचा जुमला बोलने लगा, बोले या अली, हाथ बढ़ाएं, बैयत करें। फरमाया, गदीर भूल गए हो? बोलो जो अली के नौकर बैठे हो, गदीर भूल गए हो? मुस्तफा ने मेरी बैयत कैसे ली थी? या अली, इससे पहले तो हम ऐसे करते रहे हैं, आप ही ऐसे बैयत लेने कुछ नहीं होता, बैयत का तरीका ही बदला, करनी तो बैयत ही है। अली ने वहीं पे खड़े होकर कुरान की आयत पढ़ी। अली फरमाया, खुदा ने कुरान में कहा है, यदुल्लाहु फौका बिअयदिहिम, अल्लाह का हाथ बंदों के हाथ के ऊपर होता है। हम अल्लाह का हाथ है। सबसे पहले तलहा इब्न उबैदुल्लाह ने अली के हाथ पे बैयत की, फिर एक सिलसिला शुरू हुआ और बैयत अमीर होती रही। अली की बैयत होने के बाद मस्जिद में मदीने की बिलाल वाली अजान गूंजी।
मुसल्ला इबादत पे आए। लफ्ज तब्दील करूंगा, मुझे खुद मजा नहीं आया, मैं लफ्ज तब्दील करूंगा। 25 साल के बाद मुसल्ले ने अली के पांव चूमे। अली ने मुसल्ले पे पांव रखते ही पहला जुमला तारीख के कलेजे से निकाल के आपके कलूब में उतार ले। अली फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अला अहसानिहा वजअल अल हक अला मकानिहा। तारीफ तेरे एहसान की, आज हक अपनी जगह पे आ गया है। आज हक अपने मकाम पे आ गया। अली ने नमाज, बोलो जो अली के नौकर बैठे हो, अगर हर नमाज मुस्तफा वाली नमाज थी, फिर किसी ने ये क्यों कहा कि आज मुस्तफा वाली नमाज याद आई? इसका मतलब कुछ तब्दील हुआ था। जो तब्दील हुआ था वो आज तक ठीक नहीं हो रहा। कुछ तब्दीली आई है। आज आप लोग कहते हैं जी कैसे हो सकता है, अभी दुनिया से नबी को कितना अरसा हुआ और नमाज तब्दील हो चुकी है, तरीका नमाज तब्दील हो चुका है। अमीर अल मोमिनीन नमाज पढ़ा रहे हैं और पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, गर्दन कटवाऊंगा, कुछ साबित करके दिखाएं। कुरान की नस तारीख के उस मौर्रख के चेहरे पे बतौर थप्पड़ मारूंगा जो कहे कि अली ने किसी के पीछे नमाज पढ़ी। वो रवायत निकालेगा, मैं रवायत को क्या करूं? मेरे पास आयत है। मैं आयत के साथ रवायत की गर्दन काटूंगा। खुदा कुरान में कहता वल्लाहु तबाल हक लफसदत अस्समावाति वल अर्ज़ व मन फीहिन। हक किसी भी दौर में बातिल के पीछे आ जाता, जमीन और आसमान बर्बाद हो जाते। और नबी ने कहा है अल हक मा अली। रसूल ने ये नहीं कहा कि अली हक के पीछे चलता है। अल हक मा अली व अली मा अल हक। हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। मेरे अल्लाह हक उधर फिर दे जिधर मेरा अली फिर जाए। हक उधर फेर दे जिधर मेरा अली फिर जाए। इतना बंदे तो साथ बोल रहे हैं जो पीछे हैं, कहीं मेरा शक पक्का ना करना कि कोई बंदा ज़हन में अली को सोच रहा है। रसूल ने कहा हक उधर फेर दे जिधर मेरा अली फिर जाए। इसका मतलब अली आगे चलता है, हक पीछे चलता है। और मौलवी अपनी अकल का इलाज करवा, जो हक के पीछे नहीं खड़ा होता उम्मती के पीछे कैसे खड़ा? जो हक के पीछे नहीं चलता। जो हक के पीछे नहीं चलता, जो हक के पीछे खड़ा नहीं होता, वो किसी के पीछे कैसे खड़ा होगा? मेरे मजहब की बहुत अहम शख्सियत है अल्लामा हिल्ली। उनसे मुनाज़रे में के बंदे ने पूछा, उसने कहा जी हमने सुना है कि अली ने किसी के पीछे नमाज पढ़ी थी। वो बड़ी बेनियाजी के साथ कहने लगे पढ़ी होगी। जब उन्होंने पढ़ी होगी, उसने कहा जी मैं हजरत अली इब्ने अबी तालिब की बात कर रहा हूं। कहते हाँ। तो फौरन खुश हुआ कि इतना बड़ा शियों का आलम, और उसने लिख दी। कहने लगे ये बात मुझे लिख के दे देंगे कि अली की वो नमाज हुई थी? कहने लगे तू अली की नमाज सोच रहा है, मैं तो उसकी नमाज की फिक्र कर रहा हूं जो नमाज के आगे खड़ा हो गया। पूछ रहा है तो मुझे अली की नमाज पूछ रहा है, मैं उसकी नमाज सोच रहा हूं जो अली के आगे नहीं, नमाज के आगे खड़ा। अमीर अल मोमिनीन ने कहा था अना सलातुल मोमिन, मैं मोमिन की नमाज। अली एहदिना सिरातल मुस्तकीम है, अली बाय बिस्मिल्लाह का नुक्ता है, अली अनअमता अलैहिम है। नमाज से अलहम तो नहीं निकाल सकते, जब तक हमद नमाज में है तब तक अली नमाज।
शाम वाले ने बिस्मिल्लाह नमाज से निकाली थी और ये कह के निकाली थी कि बाका नुक्ता अली है तो मैं नमाज में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ूंगा। अब बात को आगे बढ़ने दीजिएगा जी। अमीर अल मोमिनीन आए और बैत हुई और अली के पीछे उम्मत ने नमाज अदा की। नमाज हो चुकी, अमीर अल मोमिनीन ने फौरन कहा कि अब मैंने कल बताया था कौन कौन किस किस ओहदे पे तैनात था, अब हुकूमत अली की आ गई थी, अब अली के हाथ पे बैत हो चुकी थी। अमीर अल मोमिनीन ने कहा कि ओहदों को माजूल करो, उनसे भी कहा था कि ओहदों से हटाओ ताकि मुसलमानों के ऊपर से जालिम हुक्मरान हटे। अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया कि सबसे पहले बसरे का वाली तब्दील करो। अब देखना फर्क समझना मेरे अहले सुन्नत भाई, अली में और बाकियों में क्या फर्क था। वहां रिश्तेदारी की बुनियाद पे वजारतें दी गई थी, वहां अकरबा परवरी की गई थी, वहां ताल्लुकदारी देखी गई थी। अमीर अल मोमिनीन ने बसरे का वाली उस्मान बिन हनीफ को बुलाया, जिसको बसरे का वाली बनाया, जिसको गवर्नर बना रहा है। उसको जब इत्तला मिली तो वो अपनी खेत में कीचड़ में उसकी टांगे थी, हाथ में कुदाल था और मजदूरी कर रहा था। बेटे ने आके कहा कि बाबा तू बसरे का गवर्नर बन गया। इसने यूं देखे कहा मैं बसरे का गवर्नर, बाप से मजाक कर रहा है। किसने बनाया? उसे कहा तख्त पे अली आ गया है, मिंबर पे अली बैठ गए, अली बैठ गए हैं मिंबर पे। रोशन तरीन दौर इस्लाम का ये जो अली का था, कार्लाइल जिसने पूरी इस्लामिक हिस्ट्री लिखी है, उसने कहा सबसे रोशन बाब इस्लाम का अली का दौरे हुकूमत। उसने कहा कि मैं अली के दौरे हुकूमत को इसलिए सबसे रोशन दौर कहूंगा कि पूरे अली के दौर में किसी घर में चोरी नहीं हुई, किसी का माल नहीं लूटा गया, कोई भूखा नहीं सोया। इंसान की जो बुनियादी जरूरत है, रोटी कपड़ा और मकान, ये सबसे पहले अली के दौर में दी गई। फरमाल के अस्तर उठ, मिस्र की हुकूमत संभाल। अब देखो राज हो रहा है अली के नौकरों का। अली के नौकर बढ़ रहे हैं, गवर्नरशिप दी जा रही है। और अमीर अल मोमिनीन ने जो माल के अश्तर को खतूत लिखे, नहजुल बलागा में जो गवर्नरों को खतूत लिखे, आज भी दुनिया के जितने इस्लामिक हुक्मरान हैं, वो अली का वो खत जो अली ने माल के अश्तर को दिया था ना, ये बेहतरीन हुकूमत चलाने का दस्तूर है। पूरी जिम्मेदारी से मैं लंदन की इमाम बारगाह में वीडियो कैमरे की मौजूदगी में ऐलान करके कह रहा हूं, तअस्सुब अपनी जगह पे रखो, फिरकी अपनी जगह पे रखो, मजहब अपनी जगह पे रखो। अगर आज भी इंसानियत को सुकून देना चाहते हो, जो अली ने माल के अश्तर के नाम खत लिखा था ना, उस खत को राइज करके देखो। आप जिस माशरे में रह रहे हैं, यहां अमन क्यों है? इन्होंने अली से अदल देखा है। खत की एक पूरा खत पढ़ूंगा तो यही बात रुक जाएगी। एक अलहदा मजलिस हुई तो मुझे याद करना, मैं पूरा खत का मतन पढ़ूंगा। अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया, माल के अस्तर जहां मैं तुझे भेज रहा हूं मिस्र में, वहां तुझे दो तरह के लोग मिलेंगे। एक तेरे दीनी भाई हैं, एक तेरे इंसानी भाई हैं। कहां से लाएगी दुनिया अली? मिस्र में सारा मिस्र मुसलमान नहीं था, गैर मुस्लिम आबाद थे। अली फरमाया दो तरह के लोग मिलेंगे, एक दीनी भाई, एक इंसानी भाई। जो मुसलमान है दीन की वजह से हया करना, जो गैर मुस्लिम है इंसानियत की बुनियाद पे हया। ये था अमीर अल मोमिनीन का दौर। अमीर अल मोमिनीन का दौर आया है। मैं अपने बच्चों को दो तीन मिसालें दे देता हूं। वहां क्या था जो मैंने कल पढ़ा? अकरबा परवरी। शराब नबी, जितने शराब नोच थे वो हुक्मरान थे, घर तोड़े जा रहे थे, माल लूटा जा रहा था, इज्जतें पमाल की जा रही थी। अली का दौर आ गया। मौला अमीर अल मोमिनीन का दौर आया तो चंद लोगों ने कहा कि हमने मुहासरे के दिनों में अली की बात मानी थी। कल वाली गुफ्तगू जब मुहासरा किया हुआ था ना, अली आए थे तो हमने 3 बार अली के कहने पे मुहासरा तोड़ा था। तो अब अली की गवर्नमेंट आ गई है तो हम जाके कहते कल हमने आपकी इज्जत रखी थी,
آج ہمیں بھی ذرا عہدے دیں, کہیں ہمیں بھی تعینات کریں. یہ 4 لوگ اس لالچ میں مولا علی سے ملنے کے لیے گئے. جب گئے تو مولا امیر المومنین ایک چراغ جل رہا تھا اور زمین پہ بیٹھ کے مولا بیت المال کا حساب لکھ رہے تھے. یہ آئے اور آ کے سامنے بیٹھ کے سلام کیا, سلام یا علی. علیہ السلام. مولا امیر المومنین حساب لکھ رہے ہیں. یا علی ہم کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. علی نے ہاتھ سے چراغ کو بجھایا. واقعہ نہیں ہے یہ, واقعہ نہیں ہے, اس کو صرف واقعہ سمجھ کے ذہن سے اتار نہ دینا. میں علی سمجھانے لگا ہوں, علی سمجھ جائے دنیا, آج بھی علی شناس بن جائے. امیر المومنین نے ہاتھ کے ساتھ چراغ کی لو کو بجھایا. امیر المومنین نے رخ ان کی طرف کیا. کس کام آئے ہو؟ یا علی اندھیرا ہو گیا ہے کمرے میں, چراغ روشن کرے. فرمایا اس میں جو تیل ہے نا وہ بیت المال کا ہے. تم مجھ سے ذاتی گفتگو کرنے آئے ہو. اس ذاتی گفتگو کے درمیان جو تیل جلے گا اس کا حساب قیامت کو کون دے گا؟ اب وہ ذہن میں کیا لے کے آئے تھے کہ ہم علی سے حکومت لیں گے. فوراً چپ ہو گئے کہ جو تیل کا حساب رکھ رہا ہے آئے آئے یہ ہمیں حکومت کیسے دے گا؟ فوراً تاریخ کہتی ہے سوال تبدیل ہوا, کہنے لگے یا علی ہم عمرے کے ارادے سے جانا چاہتے تھے, ہم پوچھنے کے لیے آئے تھے کہ کچھ ہمیں مسنون دعائیں تعلیم فرمائیں. دلوں کے حال جاننے والا ہے علی. میں علی کے یہاں فیصلے پڑھوں تو رات گزر جائے. علی نے اپنے دور حکومت میں کیا فیصلے کیے. جتنے میرے نوجوان ہو میں منت کر کے کہوں گا تمہارا بھائی دوست ہونے کی حیثیت سے علم کی دنیا میں کبھی اپنے آپ کو کمزور نہ کرنا. میری قوم کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم میدان علم میں پیچھے جا رہے ہیں. تعصب وہی ہوتا ہے جہاں جہالت ہوتی ہے. آپ علم کی بنیاد پہ کوئی عہدہ لے کے دیکھیں, پھر میں دیکھوں گا کہ آپ سے کوئی شیعہ ہونے کی وجہ سے کیسے نفرت کرتا ہے. یعنی ایسے ایسے لوگ جو اپنے اپنے عہدے میں اپنے اپنے شعبے کے ماہر ہیں, ان کے دروازے پہ مذہب کے دشمنوں کو کھڑے دیکھا ہے. کوئی بہت بہترین ڈاکٹر ہو اور شیعہ ہو, کوئی میڈیسن لینے کے لیے جاتا ہوا نہیں پوچھتا کہ شیعہ سے کیوں لینی ہے. وہ کہتے شیعہ ہے صحیح, ڈاکٹر بہت اچھا ہے, وکیل بڑا اچھا ہے. علم کی علم ہے. امیر المومنین نے علم کی دنیا تخلیق کرنی شروع کر دی. 25 سال یہ دور اندھیرے میں رہا تھا. اب علی دوبارہ ظلمتوں سے نکال گیا. شاباش شاباش, یہ حق ہوتا ہے سامعین کا. یہی خطیب کی تھکن اتر جاتی ہے جب سامع اس کا ربط قائم رکھے. علی دوبارہ اس 25 سال کے دور کو جہاں نور میں گئے ہووں کو دوبارہ ظلمتوں میں پھینکا تھا, علی پھر ظلمتوں سے نکالا, نور کی طرف لے کے. انگریز مورخ کارلائل نے کہا تھا کاش دنیا, اس ایک جملے پہ غیر مسلم کا جملہ ہے لیکن مجھے دل سے قبول ہے, اسے کہا کاش دنیا علی کو میدان جنگ میں مصروف نہ رکھتی. تو علی علم کی اتنی دنیایں تخلیق کر دیتا کہ ساری زندگی ریسرچ کی ضرورت ہی نہ رہتی. علی علم کی دنیایں آباد کر دیتا. وہاں سر کاٹے جا رہے تھے, یہاں ابن عباس تفسیر لکھ رہا تھا, یہاں ابن عباس کو پڑھایا جا رہا تھا, یہاں حدیث لکھوائی جا رہی تھی, یہاں علم الکلام دیا جا رہا تھا, یہاں انسانی بدن کی امراض پہ گفتگو ہو رہی تھی. علم کی دنیایں مولا علی تخلیق کر رہے تھے. جہالت میں بھری ہوئی انسانیت نے علم کی روشنی دیکھی, لوگ علی کی طرف امڑ آئے. لیکن پھر بدقسمتی مسلمانوں کی, جس علی کے لیے بساط علم بچھانی چاہیے تھی, جو منبر پہ بیٹھ کے کر رہا سلونی پوچھو, یہ ہے علی کا نعرہ. سلونی سلونی قبل تفقدونی. یہاں اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے کہ پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں. وہ علی کون ہے جو چلا جائے؟ ہاں نا, تکثیر نہ کرنا علی کی, تکثیر نہ کرنا علی کی.
अली ने फरमाया पूछो मुझसे कबल इसके कि तुम मुझे खो दो। ये जो चराग इल्म जल रहा है तुम इससे बहुत दूर चले जाओ, पूछ लो जो पूछना है। दुश्मन पूछ रहा है, अली बता रहे हैं, दोस्त पूछ रहा है, अली बता रहे हैं। मैं काश मौजू यहीं पर रुक जाता तो इतना कुछ आंखों के सामने फिर रहा था कि मुझसे मुश्किल हो गया था कि मैं क्या पढ़ूं और क्या ना पढ़ूं, लेकिन मौजू मुझे लेके आगे बढ़ना है। अभी अली इल्म की दुनिया तख्लीक कर रहे थे। या बसरे में जो पहला गवर्नर भेजा था उसे बसरे में कत्ल कर दिया जाता है। उस्मान बिन हनीफ की चेहरे की दाढ़ी नोच ली जाती है। जो नबी की बीवी मदीना छोड़ के गई थी और नबी की बाकी बीवियां उनके साथ थी, ये मक्का में आके क्याम कर चुकी थी। ये मक्का में रुकी हुई थी। जब इनको खबर पहुंची कि तीसरा खलीफा कत्ल हो गया है और मिंबर पे अली आ गए, इन्होंने कहा अली को इख्तिदार किसने दिया? फरमाया मदीने के लोग इकट्ठे होकर चले गए थे। सबसे पहले तलहा अली की बैत करने वाला था। अमीर अल-मोमिनीन ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया था। अली ने फरमाया था कि जो मेरे मुखालिफ उमैया के लोग हैं ना, जिन्होंने तीसरी हुकूमत सबसे ज्यादा इस्लाम को नुकसान पहुंचाया, अली फरमाया इनमें से कोई मदीने से बाहर ना निकले, इनको मदीने से बाहर नहीं जाने देना। कहीं बाहर जाके जो बाकी सल्तनतें हैं उनको जाके खराब ना करें, अभी इनको यही रहने दो। अमीर अल-मोमिनीन ने उनको मदीने रख लिया था। किस वजह से? कि वो शरारत ना करें। बाज औकात हुज्जत किसी को करीब इसलिए रख लेती है ये जमाने में जाके शरारत। इसका मतलब ये नहीं है कि उन लोगों से अली को प्यार था, दुश्मनी थी अली को बहुत शदीद। इस्लाह उम्मत के लिए कि वो अली को तो गुमराह नहीं कर सकते। मौला अली को पता था कि मेरे पास भी रहे तो मुझे क्या करेंगे, अली को तो गुमराह नहीं कर सकते। जिनको बचाना था उनकी वजह से अली ने करीब बिठा लिया ताकि वो बच जाए। कुछ लोग हमें बचाने के लिए बिठाए गए थे। मैं क्या करूं, मैं मुश्किल दौर का खतीब हूं। यकीन करें बाज़ औक़ात बदन टूटता है कि कभी तो ऐसा भी इज़्न और अमर होगा कि हम खुल के अली पढ़े, लेकिन क्या करें, हम फितनों के दौर में रहने वाले लोग हैं जहां चारों तरफ फितना गरी है। हाकिम शाम अभी मरा नहीं है, हाँ जिंदा है अभी भी हाकिम शाम, और उसके फितने भी जिंदा है। अली वालों की आज भी वही मजलूमियत है जो मदीने में अली की थी। अमीर अल-मोमिनीन बसरा की तरफ जाते हैं और 20,000 का लश्कर अली के हमरा होता है। 20,000 का लश्कर लेके अमीर अल-मोमिनीन बसरा के बाहर जाके क़याम कर लेते हैं। इधर जब अमीर अल-मोमिनीन 20,000 का लश्कर लेके बसरा पहुंचे तो जिन्हें मदीने में रोका था ना, वो मदीने से निकल जाते हैं। और अमर बिन आस हो गया, ये जितने लोग थे ये सब जाके शाम में क़याम कर लेते हैं। ठीक हो गया। अमीर अल-मोमिनीन बसरा के करीब पहुंचते, खबर पहुंचती है कि अली बसरा के बाहर आ गए। तो नबी की एक ज़ौजा को, सिर्फ एक ज़ौजा मक्का से बसरा की तरफ रवाना हो जाती है। बाकी जितनी बीवियां हैं वो वापस आ जाती हैं। एक को रोकने के लिए कहा था, वो रुक भी गई थी, लेकिन उनका जो भाई था वो अमीर अल-मोमिनीन का साथी भी नहीं था, अब्दुल्ला उसका नाम था, लेकिन उसने फिर भी कहा था कि बेशक मैं अली का साथी नहीं हूं, लेकिन अली के मुकाबले पे नहीं जाने दूंगा। तो उन्होंने कहा था कि अगर तू अली का साथी भी नहीं है तो अली के मुकाबले पे क्यों नहीं जाने देता? उसने कहा मुझे नबी की एक हदीस याद है। नबी ने कहा था कि मेरी बीवियों में से एक ऐसी होगी जिसे हव्वाब के कुत्ते भौंकेंगे और वो हक उस वक्त हक पर नहीं होगी। तो लिहाजा मुझे वो हदीस पैगंबर याद है, तो मैं नहीं चाहता कि वो आप हो, तो लिहाजा आप पलट जाए। अब नबी की उस ज़ौजा को बसरा बुलवा लिया जाता है कि आप अली के मुखालिफ लश्कर की क़यादत करें। जब उनको आमादा कर दिया जाता है तो अमीर अल-मोमिनीन बसरा पे हमला नहीं करते। अमीर अल-मोमिनीन अपने कासद को भेजते हैं कि मुझे सिर्फ वो दुश्मनान जो आज भी बसरे में इस्लाम के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं उसके खिलाफ जंग करनी है, बाकी पूरे बसरे को अमान है।
کہا جاتا ہے کہ نہیں علی ہم آپ سے جنگ کے لیے آمادہ ہیں. جب کہہ دیا جاتا ہے کہ امیر المومنین ہم آپ سے جنگ کے لیے آمادہ ہیں تو ادھر سے ایک بہت بڑا لشکر جو ہے وہ میدان میں لا کے کھڑا کر دیا جاتا ہے. جو ہی وہ لشکر مقابلے پہ کھڑا ہوتا ہے تو امیر المومنین اپنی طرف سے ایک نوجوان کو ہاتھ میں قرآن دے کے امن کا پیغام دے کے بھیجتے ہیں کہ تو میری طرف سے جا، ان سے کہے آپ کے اور میرے درمیان یہ قرآن حاکم ہے، اس قرآن پہ فیصلہ کرتے ہیں. جو ہی وہ قرآن لے کے جاتا ہے تو اس نوجوان کو قتل کر دیا جاتا ہے اور قرآن پہ تیر مارا جاتا ہے. جب قرآن پہ تیر لگتا ہے تو علی پہ اب جہاد واجب ہو جاتا ہے. اب امیر المومنین جو ہیں وہ میدان میں اس انداز کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں کہ ساتھ علی کے سارے علی کے بیٹے آئے. صاحبان، نوجوانان ملت، یہ کون سا علی ہے جو بدر میں لڑا تھا تو 25 سال کا تھا، جوانی تھی، مکمل شباب تھا علی کا. آج علی کو جب امت دوبارہ میدان میں لا رہی ہے تو علی 60 سال کے ہیں. امت نے سمجھا تھا کہ شاید ضعیفی کی وجہ سے علی میں وہ جوانی کا زور نہ ہو، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ علی ہر دور میں علی ہوتا ہے. امیر المومنین کی یہ جتنی میں باتیں کر رہا ہوں، میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ باتیں شیعہ کتابوں سے میں نہیں کر رہا، یہ باتیں اہل سنت کتابوں میں لکھی ہیں. تاریخ طبری اٹھا کے دیکھو، ابن خلدون اٹھا کے دیکھو، طبقات ابن سعد اٹھا کے دیکھو، سب نے لکھا ہے کہ امیر المومنین بار بار قاصد بھیجتے ہیں کہ میں جنگ نہیں چاہتا، میں نہیں چاہتا کہ جنگ ہو، قتل و غارت ہو، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ بڑے اچھے طریقے سے اس معاملے کو سلجھایا جا سکے. ادھر سے ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ ہم آپ سے اس بات پہ معاہدہ کریں گے، پہلے آپ قاتلین عثمان کو جو آپ کے لشکر میں ہیں ہمارے حوالے کریں. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ عثمان کے قاتل میرے لشکر میں نہیں ہیں، میرے لشکر میں وہی لوگ ہیں جنہوں نے حق پہ علی کی بیعت کی ہے. اگر تم قاتلان عثمان کو ڈھونڈنا چاہتے ہو تو میں تمہارے ساتھ مل کے قاتلان عثمان کو ڈھونڈیں گے بھی، انہیں سزا بھی دیں گے، لیکن یوں یہ فیصلہ میدان میں نہ کرو. آخر امیر المومنین کے بار بار پیشکش کو ٹھکرایا جاتا ہے. آخری رات مولا علی جناب حسن کو بھیجتے ہیں، حسن آپ جائیے کیونکہ آپ رسول کے بیٹے ہیں. علی جانتے تھے کہ مورخ کیا کرنے والا ہے، علی جانتے تھے کہ مورخ کیا ظلم کرنے والا ہے. علی کو خبر تھی کہ مورخ لکھے گا کہ یہ جنگ برابر عدل پہ اس لیے نہیں تھی کہ ادھر رسول کی زوجہ تھی، ادھر رسول کا چچا زاد بھائی تھا نا، ایک داماد ہی تھا، تو زوجہ کا رشتہ زیادہ قریب ہے باعتبار داماد کے. علی دیکھتے تھے کہ مورخ رشتہ داری کی بنیاد پہ اس جنگ کو لکھے گا. علی نے فرمایا کہ پھر میں اسے بھیجتا ہوں جو رشتے میں محمد کا بیٹا ہے. جو رشتے میں رسول کا بیٹا. مولا حسن کو بھیج دیا جاتا ہے. مولا حسن جاتے ہیں اور مولا حسن جا کے کہتے ہیں کہ ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ واپس جائیں، ہم عزت کے ساتھ آبرو کے ساتھ آپ کو واپس مدینے پہنچائیں گے، آپ اس لشکر کی کمانڈ نہ کریں، اس میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آپ کو قیادت دے کے اسلام میں شورش برپا کرنا چاہتے ہیں. مولا حسن کو ایک بہت لمبی چوڑی بات بتائی جاتی ہے، مولا امیر المومنین کے بارے میں ایک بہت عداوت کا ایک پورا ایک خطبہ دیا جاتا ہے، گفتگو ہوتی ہے. مولا حسن واپس آتے ہیں کہ بابا کسی طریقے سے تسلیم نہیں کیا جا رہا. پھر مولا امیر المومنین سوچتے ہیں کہ کیا ہوگا، کس دور میں ہے علی. بڑا آسان ہے آپ کے لیے اس تاریخ کو سننا، لیکن کتنے فیصلے مشکل تھے علی کے لیے کہ جو ساتھ چل رہے ہیں ان پہ بھی اعتماد نہیں ہے اور اسلام کو بھی بچانا ہے، نبی کی نبوت کو بھی خطرے میں نہیں آنے دینا. امیر المومنین پھر صبح کے وقت نماز فجر کے بعد محمد بن ابی بکر کو بھیجتے ہیں کہ رشتے کے اعتبار سے آپ ان کے بھائی ہیں، بطور بھائی جا کے گئے. وہ جا کے کہتے ہیں کہ وہ ان کو حجرے کے اندر بلایا جاتا ہے تو وہ حجرے کے اندر نہیں جاتے، وہ کہتے ہیں میں خیمے کے اندر نہیں آؤں گا. وہ خیمے کے باہر کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ میں اب بھی کہتا ہوں کہ آپ واپس جائیں. تو وہ کہتی ہیں کہ تو میرا بھائی ہے، وائے ہے تم پہ کہ تو بھائی ہو کے بہن کے ساتھ نہیں ہے اور تو علی کے ساتھ ہے. محمد بن ابی بکر کی جوتی ملے نا مجھے، میں نسل وار دوں.
मोहम्मद बिन अबी बकर ने कहा 1000 बहनें भी हों मैं अली पे कुर्बान कर रहा हूं। अली हक है, मैं अली को नहीं छोड़ूंगा। और ये कह के मोहम्मद बिन अबी बकर हुज्जत को तमाम करते हैं। सुबह को मैदान में जंग का तबल भर जाता है। अमीर अल मोमिनीन खुद मैदान जंग में नहीं उतर रहे। अली ने अकलौते लाडले कमांडर मालिक अश्तर को भेजा। मालिक अश्तर मौला अली का वो सिपाही था, दराज का था। कहते हैं कि ऊंट पे बैठते थे तो पांव जमीन पे आते थे, इतना कद था अली के नौकर। और यूं तलवार जिसे चलानी ही अली ने सिखाई हो। मैं क्या मालिक अस्तर पढ़ूं, मैं क्या मालिक अस्तर की बहादुरी पढ़ूं। मालिक अस्तर को भेजा था। मालिक अस्तर एक दस्ता लेके जाते हैं। दस्ता लेके जाके मालिक अस्तर ऐसा हमला करते हैं, फौजों में भगदड़ मच जाती है। अमीर अल मोमिनीन खैमे पे खड़े देख रहे हैं। अभी अली अपने किसी बेटे को नहीं आजमा रहे। अभी अली का कोई बेटा नहीं। आज मेरा दिल था कि मैं सफीन तक पहुंच जाता, लेकिन गुफ्तगू आज यहीं पे रुक जाएगी और कल इंशाल्लाह सफीन में अली के बेटों के हमले सुना दूंगा आपको। यूं अमीर अल मोमिनीन अकेले माल के अस्तर यूं सरों को काटते हुए, गर्दनों को काटते हुए जा रहे हैं। अमीर अल मोमिनीन टीले पे खड़े मालिक की जंग देख रहे हैं। या अमीर अल मोमिनीन ने देखा कि अचानक एक काम हुआ है। वो क्या हुआ है कि एक ऊंटनी के ऊपर एक हौदज रखा जाता है। हौदज समझते हैं? एक अमारी टाइप जिसमें पर्दे लगे होते हैं। उसके अंदर नबी की ज़ौजा को बिठा के मैदान के बिल्कुल सेंटर में लाके उसे खड़ा कर दिया जाता है। जो ही वो ऊंट आके खड़ा होता है तो अब अमीर अल मोमिनीन देख रहे हैं ये बहुत बड़ी साजिश हो रही है। जैसे सफीन पे नेज़ों पे कुरान उठना था ना, उससे पहले यह हुआ कि इज्जत रसूल और हुर्मत रसूल को मैदान जंग में इस्तेमाल किया था। लोग जब कोई दलील नहीं ना होती तो फिर मजहब का कार्ड इस्तेमाल करते हैं। ये आज भी हो रहा है, आज भी हो रहा है। लेना देना कुछ और हो तो फिर कह देना नहीं जी हमें हमसे दुश्मनी सिर्फ इसलिए थी हम मुसलमान हैं। मजहब का कार्ड लोगों के पास। अब इन्होंने ये कार्ड इस्तेमाल किया रसूल की इज्जत का। ला के दरमियान में ऊंट रख दिया। कब देखे कि मैदान जंग में क्या होता। मैदान में जंग हो रही थी, तीर भी आ सकता है, तलवार भी आ सकती है, हमला भी हो सकता है। दरमियान में ऊंट खड़ा कर दिया। अमीर अल मोमिनीन खड़े देख रहे हैं कि बहुत बड़ी इन्होंने चालाकी की और एक चाल चली है। अमीर अल मोमिनीन देख रहे हैं। यहां अमीर अल मोमिनीन ने एक मंजर बड़ा अजीब देखा कि लोग आते उस ऊंटनी की मुहार को चूमते और अपनी गर्दन जाके अली के सिपाहियों की तलवार के नीचे करते, यानी कि अपने आप को उस ऊंटनी को मुकद्दस, उस ऊंट को मुकद्दस बना के अपने आप को कत्ल करवाया जा रहा। अली सर पे हाथ रखते हैं। अली कहते डर है मुझे जैसे मूसा के दौर में बछड़े की पूजा हुई थी, इस ऊंट की पूजा ना होनी शुरू हो जाए। जब अमीर अल मोमिनीन देखते हैं तो उस ऊंट की रंगत, उसकी आंखें, उसकी टांगे, ये हैवान नहीं है। अली टीले बड़े मालिक, मालिक जंग करता हुआ जीन से उठता, जी मौला ऊंट की टांगे काट। मालिक इस तरफ देखें, ये हुज्जत के नौकर होते हैं। क्यों? कैसे? जो रसूल और अली कहते हैं कि जानवर को ताजियाना भी नहीं मारना, वो अली कह रहा है कि हैवान की टांगे काट। मालिक अस्तर को और कहते हैं ना गर्दने काट, सर काट। मालिक को हौसला होता, मालिक घोड़ा दौड़ा रहे और अली का हुक्म आया मालिक ऊंट की टांगे काट। मालिक ने भागते घोड़े में पूछा नहीं, दिल में अभी सोचा ऊंट की टांगे क्यों? अली की बात ऊंट नहीं शैतान है। इब्लीस हैवान के रूप में खड़ा है। टांगे काट। मालिक इस तरह अपने घोड़े को चक्कर लगा के दौड़ाते हुए आते हैं और मालिक घोड़े से अपने आप को झुकाता है और ऊंट की एक टांग को काट को टांगते हुए मालिक का घोड़ा यूं घूम के मालिक पीछे मुड़ के देखता है तो 3 टांगों पे ऊंट खड़ा। मालिक इस तरह फिर टीले पे अली को देखता, अली फरमाया मालिक मैंने तुम्हें कहा ये ऊंट नहीं है, जल्दी कर इसकी टांगे काट।
माल के स्तर, फिर घोड़े को दौड़ाता है, फिर अपने आप को बाईं रकाब में झुकाता है और झुकी हुई गर्दन के साथ अली का नौकर दूसरी टांग काटता है। 2 टांगे हैं। माल के स्तर सामने से आता है और एक बार अपने आप को घोड़े की जीन से गिराता है, दोनों घुटने रेत पे रखता है, दोनों हाथों के साथ पूरी ताकत से वार करता है। ऊंट की अगली दोनों टांगे एक ही बार में मालिक काट देता है। जो ही टांगे कटती है तो जमल के मैदान में खामोशी हो जाती है कि अब हौदज गिर जाएगा, अब नबी की ज़ौजा की तौहीन हो जाएगी, हम यहीं से शोर बुलंद कर देंगे। जिस मकसद के लिए ऊंट खड़ा था वह मकसद पूरा होने वाला है। लोग नारे बुलंद करने के लिए तैयार खड़े थे कि अब हम अली के खिलाफ इस शोरश को बर्पा कर देंगे कि पहले तो खलीफा का कत्ल हुआ, अब नबी की ज़ौजा की तौहीन हो गई। अभी बंदे अपने मकसद को पाने लगे थे। अली के बाद मोहम्मद दौड़, मोहम्मद बिन अबी बकर ने अपने घोड़े को दौड़ाया, गिरते हुए हौदज में हाथ डाला, उनको उठा के अपने घोड़े की पूंछ में बिठाया। उसने कहा अली ने नाम महरम को भेज दिया, फरमाया खामोश, तेरा भाई मोहम्मद आपका भाई अली, अली ने आपका भाई मोहम्मद भेजा है। खुल्क अजीम का मालिक था अली। कितनी बड़ी साजिशें हुई थी, कैसे जंग पलटने लगी थी और अली ने जंग के माहौल को पलट दिया। गुफ्तगू इंशाल्लाह कल सफीन पे जाएगी और फिर हम करबला तक पहुंचेंगे। जिस अली ने इतना हया किया था ना, जिस अली की मुखालफत होने के बावजूद अली चाहते थे कि तौहीन ना हो, उसकी बेटी शाम के बाजार में चादर गुजर गई 8 मुहर्रम, सिर्फ कल की रात का मेहमान है। कल शहीदों की रात है, फिर उसके बाद गरीबों की रात। 8 दिन गुजर गए मेरी कौम को मुसलसल हुसैन को रोते हुए। बस आज मिन्नत करूंगा, 2 रातें हैं, बशरी तकाजा है कि इंसान इतना रोता नहीं, लेकिन नुकसान बहुत बड़ा है। मुझसे बार बार मोमिनीन का इसरार है कि मुसाइब आप कम कर दें। मैं बार बार रोजाना कह रहा हूं कि बाखुदा मैं जितना छुपा सकता हूं उतना छुपा रहा हूं, लेकिन मैं क्या करूं, मैं आपके किसी डर की वजह से, मेरे सामने मेरे चौथे शहंशाह का फरमान है, हमारी मुसीबत पे पर्दा न डालो। दुनिया को बताओ कि हमारा नुकसान क्या क्या है। आज है अब्बास के अलम की सूरत में गाजी का जनाजा। अल्लाह जाने ये करबला के शोहदा की याद कैसी है। हक तो ये बनता था ना कि सबके जनाजे उठे, लेकिन हम किसी का झूला उठाते हैं, किसी की गठरी उठाते हैं, किसी का अलम उठाते हैं। जनाजे उनके उठाए जाते हैं जिनकी मैयत रही हो। नहीं रो सके। मैंने पहले कहा है कि मैं जुमले छुपा रहा हूं, फिर तुम्हारे मातम के लिए फिर जुमला तब्दील करता हूं। जनाजे उनके उठाए जाते हैं जिनकी लाश दफन के काबिल। मैं कोशिश करूंगा, पर मैं ज्यादा गया हूं। 7 से 8 मिनट में मैं अब्बास पढ़ना चाहता हूं। बड़ा मान था
अली की बेटियों को गाजी पे बड़ा मान था, अली की बेटियों को अब्बास पे। अब्बास की चढ़ती जवानी देखती ज़ैनब देख के कहती है, अब्बास मुझे बाबा ने कहा था एक दौर आएगा तो शाम के बाजार में खुतबे पड़ेगी। अब्बास जब मैं तेरी चढ़ती जवानी देखती हूं तो मैं सोचती हूं जिसका अब्बास जैसा भाई हो उसे बाजार में कौन बुलाएगा। सादात गैर सादात कितना मान था। वक्त ज्यादा हो जाएगा, बस बड़ी करीब से शहादत पढ़ने लगा हूं। टीलाए करबला असर का वक्त, कब्जा तलवार पे हुसैन की पेशानी। हुसैन रेत पे अपनी उंगली से गुर्बत की लकीरें खींच रहा था। या हुसैन बादशाह को किसी के चलने की आवाज आई। मैं बड़े आराम से पढ़ूंगा। मौला हुसैन ने सर उठा के देखा तो अली की शक्ल अब्बास की सूरत में सामने खड़ी थी। अब्बास की आवाज आई, मौला मैं इजाजत लेने आया हूं। हुसैन ने रेत पे अपना हाथ रखे का लड़ने की या मरने की। गाजी इजाजत लड़ने की या मरने की। अब्बास तो मेरी फौज का अलमदार है। मक्तल कहती एक बार दाएं देखा अब्बास ने, एक बार बाएं देख के चीख मार के कहा, वो फौज कहां है जिसका मैं अलमदार हूं। मेरी आंखों के सामने मेरे लायक शागिर्द ज़ीन से उतर गए। मौला मेरी फौज नहीं बची। हुसैन देख के कहते, अब्बास जाना चाहता है। हाँ मौला जाना चाहता है। गुर्बत की तस्वीर बन के बैठा था करबला की रेत पे मोहम्मद का बेटा। ज़ईफ कर गई थी अकबर की मौत, मार गई थी कासम की मौत, उजड़ गया था ओनो मोहम्मद की लाशों से। बिला तशबी शबीर ने कमर पे हाथ रखे। मैं जुमला धीमे से इसलिए पढ़ रहा हूं, इससे अगला जो जुमला है वो अल्लाह जाने तुम्हें घरों तक कैसे बर्दाश्त होगा। मौला हुसैन कमर पे हाथ रखे, अब्बास का हाथ पकड़ा, चल अब्बास थोड़ी देर के लिए मेरी बात सुन। मौला हुसैन करबला में एक रेत के टीले पे खैमों की ओट में अब्बास को ले गए, जहां न खयाम से कोई हुसैन देख सकता था न दुश्मनों से कोई हुसैन देख सकता था। मौला हुसैन ने रेत के टीले के पीछे जाकर, जिसके जहन में तस्वीर आएगी वो चेहरा पीट लेगा। हुसैन मौला की हालत क्या है? सर पे रेत है, चेहरे पे लहू है, बदन पे कासम की लाश के टुकड़ों के निशान है। यूं अब्बास के सामने गुर्बत की तस्वीर बन के हुसैन का अमामा खुल के गले में आए हुए है। हुसैन की आवाज आई, अब्बास एक बार मुझे सीने से लगा। अब्बास ने मौला हुसैन को सीने से लगाया। जिस जुमले के लिए मैंने मेहनत की है वो जुमला तुमने गली और बाजारों में रोना है। हुसैन रो के कहते, अब्बास मैं तुझे तन्हाई में इसलिए लेके आया हूं, मेरा लाल मुझे एक सवाल का जवाब दे और चला जा, एक बात का जवाब दे और चला जा। गाजी रो के कहता, मौला कौन सी बात है? हुसैन रो के, अब्बास मुझे सिर्फ इतना बता, मैं बहने लेके कहां जाऊं, मैं बेटियां लेके कहां जाऊं। अब्बास मैं तेरे सहारे पे अली की बेटी को मदीने से ले आया था कि मेरा गाजी मेरे साथ जा रहा है। अब्बास मेरी सकीना कहां जाए? हौसला हौसला हौसला। अब्बास अब्बास मेरी सकीना कहां जाएगी? अब्बास तेरे बाद मेरी ज़ैनब कहां जाएगी? बड़ा अच्छा रोल लिया मातमियों ने, बड़ा अच्छा रोल लिया मातमियों ने। यहीं पे मुझे जुमला याद आ गया। मजलिस खत्म होती है ना, नोहा पढ़ा जाता है ना, नोहे पे मातम होता ना भाईजान। मौला हुसैन की कसम है, मौला हुसैन के नोहे की एक सतर पढ़ूंगा, सारा नोहा पढ़ूंगा या कोई मर जाएगा या किसी का जिगर फट जाएगा। एक सतर पढ़ने लगा जो हुसैन ने गाजी की लाश पे नोहा पढ़ा। हुसैन ने अब्बास की लाश पे खड़े होकर कहा, अब्बास आज के बाद शामी चैन से सोएंगे। जिसका डर था वो मारा गया, लेकिन अब्बास तेरी लाश की कसम है, आज के बाद शाम वाले सोएंगे। ज़ैनब
उधर शहादत पढ़ूंगा। नहीं विदा पढ़ा, कैसे खेमे में गए नहीं पढ़ा, कैसे घोड़े पे बैठे नहीं पढ़ा, कैसे हुसैन के पास से गए नहीं पढ़ा। 3 दिन हो गए मुझे शहादतें पढ़ते, हर रोज पढ़ता हूं। जवान मक्तल में जाता, अब्बास टीले पे खड़े होके मौला हुसैन को मैदान का मंजर बताते रहते। मौला हुसैन खुद मैदान में नहीं देखते थे, गाजी बताते थे। आज अब्बास खुद जा रहा था। आज हुसैन को किसने बताना था कि मैदान का मंजर क्या है? अब अल्लाह जाने कौन बंदा है जो सीने में हाथ रखेगा। हुसैन ने अपने कांधे पे सकीना को बिठाया। आवाज आई, सकीना मुझे बता मेरा गाजी कहाँ है? सकीना की आवाज आई, बाबा मेरा चचा गाजी फौजों में चला गया। हाथ पकड़ना, हाथ पकड़ना, हाथ पकड़ना। जो जवान बर्दाश्त न करे उसके हाथ पकड़ने जाना। सांस ले लो, हौसला कर लो, हौसला कर लो। तुम्हें आवाज पढ़ लो। हुसैन ने कांधों पे सकीना को बिठाया। सकीना की आवाज आई, बाबा मेरा चचा फौजों में चला गया है। हुसैन की आवाज आई, मरहबा गाजी। फरमाया फुरात का किनारा खाली हो गया। हुसैन की आवाज आई, मरहबा गाजी। फरमाया मेरे चचा का घोड़ा दरिया में चला गया। आवाज आई, मरहबा गाजी। सकीना की आवाज आई, गाजी ने मशकीजा भर लिया। हुसैन की आवाज आई, मरहबा गाजी। फरमाई, बाबा लाखों ने गाजी का पहरा छोड़ दिया। फरमाया, मरहबा गाजी। फरमाया मेरे चचा का घोड़ा फुरात से बाहर आ गया। आवाज आई, मरहबा गाजी। सकीना की आवाज आई, बाबा फौजें करीब आ रही हैं। हुसैन की आवाज आई, हाय गाजी। सकीना की आवाज आई, बाबा दाया हाथ गिर गया। आवाज आई, हाय गाजी। सकीना की आवाज आई, बाबा बाया हाथ गिर गया। आवाज आई, हाय मेरा गाजी। सकीना की आवाज आई, बाबा मुझे चाचा नजर आया। हौसला, हौसला, हौसला। बाबा जी इशारा करूं तो बराबरी के। या मौला, या मौला गाजी इनकी दुआएं कबूल कर लेना। गाजी तुझे सकीना के खाली जाने का वास्ता। मेरा बादशाह जितने रो रहे हैं कोई खाली ना जाए। मौला किसी की बेटी गरीब ना हो। मौला किसी का घर ना उजड़े। आवाज आई, बाबा बाबा चाचा गाजी नजर नहीं आ रहा। मैंने कल कासिम पढ़ा था, उससे पहले अकबर पढ़ा था। मैंने तुम्हें सुनाया था हुसैन फौजों में गया कैसे। लेकिन जब हुसैन लाश उठाने जाता था ना, 9 लाख को डर होता था कि अब्बास पीछे खड़ा है, अब्बास देख रहा है। अब अल्लाह जाने कौन बंदा है जो जिंदा रहेगा, कौन बंदा है जो मर जाएगा। मेरे बस में होता मैं अपनी सांसें खत्म कर लेता। रख मेरे सर पे कुरान। इधर हुसैन गाजी की लाश पे जाने लगे। कोई हुसैन को तमाचा मारता, कोई हुसैन को ताजियाना मारता, कोई हुसैन को नेजा मारता। हुसैन कभी गिरता कभी उड़ता। हौसला, 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 हौसला। तुम्हें बीबी का वास्ता 2 जुमले पढ़ने न देना। कोई मातमी हाथ जोड़ेगा तो मैं मिंबर छोड़ दूंगा। तुम्हें बीबी का वास्ता मुझे 2 जुमले पढ़ लेने देना। अब किसी का डर नहीं था, अब रजा किसी का खौफ नहीं था। हुसैन गिरता संभलता, हुसैन गिरता संभलता, हुसैन गिरता हुसैन संभलता। या ज़हरा मदद कर देना। बीबी ये जुमला तेरे मोमन बर्दाश्त कर ले। तुम्हारे आंसुओं की खातिर जिस बंदे की आंख में आंसू ने सर झुकाए ज़हरा से माफी मांगे। मुझे बीबी ज़हरा की चादर की कसम है, मैंने इतनी बड़ी कसम दी है। मैं करबला में बैठ के मक्तल की किताबें पढ़ के आया हूँ। इन्होंने सिर्फ अब्बास के बाजू नहीं काटे, इन्होंने गाजी के पांव काट दिए। इन्होंने अब्बास के बाजू काट दिए। इन्होंने अब्बास की लाश।
फातिमा की कसम खाई है, मक्तल कहती सिर्फ बाजू नहीं। पढ़ू जुमला, आज भी करबला में जाओ, अब्बास की कब्र पे जो नीचे है, अब्बास की कब्र इतनी है जितनी एक किताब का हुजम होता है। जब गाजी की मां पहली बार करबला आई थी तो इमाम बाकर साथ थे। बीबी उम्मुल बनीन ने अब्बास की कब्र पे हाथ मारे, रो के कदी बाकर, मैंने कहा था गाजी की कब्र पे लेके जा, तो मुझे असगर की कब्र पे ले आया। आवाज आई, अम्मा ये असगर की कब्र नहीं, ये मेरे गाजी की कब्र है। बीबी कदी, मेरे अब्बास का कद लंबा था, बाकर रो के कदा जितना मिला था। हौसला 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 हौसला। आखिरी जुमला छोड़ दी, नहीं पढ़ी, नहीं शहादत पढ़ी नहीं, 2 नेज़े पढ़ने लगा हूं। मिंबर की तारीख में पहली बार 2 नेज़े पढ़ने लगा हूं। 2 हस्तियों के सामने 2 बार शिमरे मलाउन का नेज़ा गया है। 2 नेज़े सुन लो, उसके बाद मैं मिंबर छोड़ने लगा हूं। पहली बार ये शिमर का नेज़ा किसके सामने गया? सांस ले लिया तुमने, अब कर लो कि सीने और चेहरे का मातम। जब अब्बास मारा गया ना था, इस मलाउन ने अब्बास का बाजू नेज़े पे लिया, ज़ैनब के खेमे के बाहर गया, जाके कहता, अली की बेटी, इस बाजू पे तुझे मान था, इस बाजू पे मान करके तू मदीने से करबला आई थी, देख हमने तेरा मान। आखिरी जुमला, एक बार नेज़ा ज़ैनब के सामने आया जिस पे अब्बास का बाजू था, और थोड़ी देर बाद इसी नेज़े पे